Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is just another video of our playlist React.js from scratch. And in this video, I am going to talk about functional components. Not only a simple talk, but I will also give you an example by making a functional component for your React.js application. Okay, but before starting this video, let me just introduce you to Newton School. So as we all know that Newton School is an e-learning platform which have different programs especially designed for you. Their most amazing program for you is full stack development course. Okay, or you can also say that this is pay after placement program, under which they will train you for 6 months. They will make you a full stack developer by teaching you different techs, and not only this, after that they will also get you placed in different companies like these companies which they have tie up with. Okay, and most amazing thing about this program of Newton School is that you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of these companies, and for a minimum of 5 lakh CTC. So this is the most amazing thing about this program. So if you want to know more about this, you can just check in the description for contact details, or you can just apply now from here and you will get a follow-up from their side. There are some more programs they have for you is Launchpad initiative, under which you can just start learning for free by logging or signing up in their website, and there are different courses for you especially designed by YouTube educators and other software developer engineers from different big companies. Okay, and one most amazing thing is their grant coding contest which they have in the end of every month, in which you can participate, win cash prizes, Amazon vouchers, plus you can also earn you can also get chance for interview with these companies. Okay, so now before starting our today's video, if you haven't subscribed this YouTube channel, you can subscribe, go to YouTube and subscribe this YouTube channel Coding Talkies, where you will get regular updates for this playlist and for all other playlists and videos like which are going to upload in the future in this channel. So to grab free content, you can just go and subscribe this YouTube channel Coding Talkies. Now let's just talk about today's video. So today we are going to get a deep intro about functional component. What are functional components? In previous वीडियो ऑल्सो मैंने थोड़ा एक तुम लोगों को इंट्यूशन दिया था कि क्या होता है फंक्शनल कंपोनेंट, तो इस वीडियो में अच्छे से बात करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग, लेट्स जस्ट गो टू अवर VS कोड एंड स्टार्ट अवर ऐप. ओके, जो हमने फर्स्ट वीडियो में या सेकेंड वीडियो में एक डेमो ऐप बनाया था, उसको अपना स्टार्ट कर लेते हैं. ओके, सिंस मैंने अपना ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है, एंड टू स्टार्ट यू कैन जस्ट सिंपली राइट npm स्टार्ट एंड यू कैन सी कि तुम्हें अपने ब्राउज़र पे एक ऐप दिखने लगेगा जिसमें तुम्हारे ऐप कंपोनेंट के अंदर जो भी कंटेंट रिटर्न हो रहा होगा वो तुम्हें अपने ब्राउज़र में दिख जाएगा. ओके, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट फंक्शनल कंपोनेंट. होता क्या है? तो इन सिंपल वर्ड्स, इफ आई से दीज आर जस्ट जावास्क्रिप्ट फंक्शंस. ओके, नथिंग मोर. ये सिर्फ एक जावास्क्रिप्ट फंक्शंस होते हैं जिसमें तुम कुछ प्रॉपर्टीज पास कर देते हो और फिर उन प्रॉपर्टीज का ईदर वो यूज करते हैं ईदर नॉट, and they return something specific to the browser or to your UI. Okay, so these are just simple JavaScript functions which returns some specific UI to the front end. You can also go for some basic definition. This function is a valid React component because it accepts a single props. Okay, ये एक single prop. अब prop, what is prop here? Let's just talk about it. तो अगर तुमने किसी और लैंग्वेज में भी कोडिंग की है, यू मस्ट रिमेंबर दैट इन अ फंक्शन बॉडी और अंडर दीज ब्रैकेट्स वी कैन पास सम आर्गुमेंट्स. ओके, तो अदर लैंग्वेजेस में हम मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास कर सकते थे, बट इन दिस रिएक्ट वी कैन पास अ सिंगल प्रॉपर्टीज. तो प्रॉप्स स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टीज हियर. कैन नेम समथिंग एल्स ऑल्सो. ओके, डजेंट मैटर, बट सिंस एक सिंपल कन्वेंशन है जावास्क्रिप्ट का और रिएक्ट का, तो प्रॉप्स इज easily understood, that's why. So it accepts a single argument props object argument with data and returns a react element. Okay, तो यहाँ पे तुमने एक चीज़
ध्यान से देखी होगी, रिटर्न्स ए रिएक्ट एलिमेंट। ओके, तो जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है वो हमारा HTML का एक सिंगल एलिमेंट रिएक्ट करता है। राइट नाउ दैट एलिमेंट इज अ h1 टैग। ओके, तो अगर तुम रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स लिख दोगे, पहले तुमने एक h1 टैग लिख दिया, उसके बाद तुमने एक div लिख दिया, उसके बाद एक h2 टैग लिख दिया, it will only return first element. So your functional component will return a single element. Okay, तो अब अगर तुम्हें एक से ज़्यादा मल्टीपल एलिमेंट्स करने हो रिटर्न, what you can simply do, you can close all those elements inside a single div tag to return all the elements to your front-end UI. Okay, simple and easy. We call such components functional components because they are literally JavaScript functions. Okay, easy and understood. कि जो फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शंस होते हैं जिसमें हम प्रॉपर्टीज पास कर देते हैं। अब उन प्रॉपर्टीज को हम डॉट ऑपरेटर से एक्सेस भी कर सकते हैं। तो कहीं पर मैंने अपने फ्रंट एंड में या फिर जहाँ भी मैं अपना कंपोनेंट कॉल कर रहा हूँ या रेंडर कर रहा हूँ, वहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी पास की होगी एंड प्रॉपर्टी का जो नेम है वो क्या रहा होगा, नेम। तो मैं उसको एक्सेस कैसे कर सकता हूँ, प्रॉप्स डॉट नेम से। ईजी। ये प्रॉप्स के ऊपर और प्रॉप्स डी स्ट्रक्चरिंग के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो भी देखेंगे। फॉर नाउ जैसे कि यहाँ पे इस फंक्शन में इन लोगों ने अपनी डॉक्स में दिया हुआ है, इसलिए मैं तुम लोगों को और बता रहा हूँ। ओके, तो आई होप यहाँ तक तुम्हें फंक्शनल कंपोनेंट में काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नाउ लेट्स जस्ट गो टू अवर ऐप एंड ट्राई टू बिल्ड अ फंक्शनल कंपोनेंट। So you can see that this is also a functional component and I have already talked about it many a times. So let's just make a functional component in our app. सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, SRC में जाता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ कंपोनेंट्स, जिसके अंदर मेरे फ्यूचर में इस ऐप के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स रहेंगे वो सब मैं इस फोल्डर के अंदर रखूँगा। उसके अंदर फिर मैं एक और कंपोनेंट 1 बनाता हूँ। ठीक है, तो इस कंपोनेंट का मैं कुछ नाम दे देता हूँ, लेट्स से demo1 और com1.js। ओके, जितने भी कंपोनेंट्स हैं तुम्हारे सारे के सारे .js फाइल एक्सटेंशन से सेव हो सकते हैं। तो सिंस दिस फाइल इज अ जावास्क्रिप्ट फाइल और JSX फाइल। ओके फाइन, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है। One more thing which I need to tell about this to you is you must always name your components with a capital letter. Okay? तुम कोई भी नया component बनाओगे तुम उसका जो फर्स्ट लेटर है, since you can see here also मैंने जो C है वो कैपिटल रखा है and that is must in React. Why? Because अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम जो स्मॉल लेटर लिखोगे उसको जावास्क्रिप्ट विल ट्रीट एज अ बिल्ट इन एलिमेंट एंड फिर वो तुम्हारे फाइल में पता नहीं चलेगा दैट दिस नेम करेस्पॉन्ड्स टू अ कंपोनेंट और अ बिल्ट इन एलिमेंट, दैट्स वाई। ओके, तो हमेशा अपना जो भी कंपोनेंट है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल। नाउ टू राइट अ फंक्शनल कंपोनेंट व्हाट यू कैन सिंपली डू, in previous video I have told you about an extension for React. If you have installed that extension, well and good. If you haven't, just go to extensions, type React here and you will be able to see a extension that is ES7 plus React Redux React Native Snippets. ओके, तो इसको इंस्टॉल कर लो सिंपली और इसका यूज़ बताता हूँ। तो नाउ लेट्स जस्ट से तुम्हें एक फंक्शनल कंपोनेंट लिखना है। व्हाट यू कैन सिंपली राइट RFCE and it will write a functional component for you. Easy and peasy, easy simple. Okay, तो इसमें अब एग्जैक्टली किया क्या, शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले तो कोई भी तुम कंपोनेंट लिखोगे यू हैव टू इम्पोर्ट दिस रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, सो दैट ये जो तुम्हारा फंक्शन है ये कंपोनेंट की तरह बिहेव करे। सेकेंड थिंग, तुमने एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखा सिंपली, उसका नेम क्या रखा तुमने, com1, component 1 एब्रीविएशन, फिर एक ब्रैकेट जिसके अंदर तुम प्रॉप्स पास कर सकते हो एंड देन फंक्शन बॉडी। इनसाइड फंक्शन बॉडी यू आर सिंपली रिटर्निंग अ डिव।
Okay, or you can also return in h1 tag okay from here, and in the end you will see that you are exporting your functional component. अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? सिंस तुमने एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लिया, बट नाउ व्हाट यू नीड टू डू, तुम्हें जो तुम कंपोनेंट अपने फ्रंट एंड में रेंडर कर रहे हो वो कौन सा कंपोनेंट है? दिस कंपोनेंट, ऐप कंपोनेंट। तो इस ऐप कंपोनेंट में तुम्हें ये जो तुम्हारा फंक्शनल कंपोनेंट है कहीं ना कहीं इंपोर्ट करना होगा या फिर इंक्लूड करना होगा इनसाइड दिस ऐप कंपोनेंट टू गेट योर कॉम वन कंपोनेंट ऑल्सो रेंडर। ओके, सो दैट्स वाई तुम इजिली क्या करोगे, इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर दोगे। एक्सपोर्ट करने के बाद यू कैन सिंपली गो टू ऐप कंपोनेंट एंड यू कैन राइट import from your folder components com1। ओके, यहाँ पे तुम .js एक्सटेंशन ना भी लगाओ तो चलेगा, ठीक है, उसका कोई मैटर नहीं है, लगा भी दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ आफ्टर importing it you have to use it inside this return statement so that your com1 component get rendered in the front end। okay, so what I will simply do, I will write it here as, अब यहाँ पे हुआ क्या, देखो अपने मन से ऑटो कंप्लीट हो गया है, बट सिंस तुम्हारे इस एलिमेंट के अंदर और इस टैग के अंदर कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है, तो तुम इसको सिंपली इस तरह भी लिख सकते हो। ओके, तो मैंने एग्जैक्टली किया क्या, एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया जिसमें मैं एक h1 टैग रिटर्न कर रहा हूँ, हेलो कोडिंग टॉकीज, एंड एक्सपोर्टिंग दिस कंपोनेंट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, और उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपली अपने ऐप कंपोनेंट में उसको इंक्लूड कर लिया। नाउ इफ यू सेव दिस फाइल एंड you will go here in your React app, you can see hello coding talkies. Okay, so what we are doing in this React application, मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट को दूसरे फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर सिंपली इंक्लूड किया है, और एक फंक्शनल कंपोनेंट में मैंने जिसको भी मैं रेंडर कर रहा हूँ उसके अंदर मैंने एक रिटर्न स्टेटमेंट दी है जिसमें मैं एक h1 टैग को रेंडर करवा रहा हूँ। इनसाइड इट आई एम सिंपली रेंडरिंग हेलो कोडिंग टॉकीज। Now you can see one more thing here, I am exporting this functional component as default। okay, तो इस default का मतलब क्या होता है, simply right now अगर तुम इसके आगे default लिखोगे तो when you import this functional component com1.js inside any other file, तुम उसको कोई भी नेम से import कर सकते हो। फाइन, लेट मी शो यू समथिंग। अगर मैं यहाँ पर डालूँ देखा, तो मैंने एग्जैक्टली किया क्या, यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉम1 किया, बट मैंने इसको कोई रैंडम नेम से इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे और उसी नेम को फर्दर यूज़ कर रहा हूँ। इफ़ यू विल गो टू योर ब्राउज़र एंड सी योर ऐप इज़ स्टिल रनिंग, बट व्हाट इफ़ मैं यहाँ से फंक्शनल कंपोनेंट से डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हटा दूँ। नाउ यू विल सी यू हैव 2 errors, ओके, एंड your app is not running right now। there is some export error। so what is happening here, तुमने जो अपना com1 फंक्शनल कंपोनेंट है उसको जिस नाम से यहाँ पे बना है, ठीक है, तुमने विद नेम एक्सपोर्ट किया है इसको, तो अब तुम्हें यहाँ पे उसी नेम से इंपोर्ट करना होगा, एंड दिस इज विद डिफॉल्ट थिंग। तो तुम अगर डिफॉल्ट लिखते हो यू कैन इम्पोर्ट इट विद एनी नेम, अदरवाइज यू हैव टू इम्पोर्ट इट विद सेम नेम। फाइन, तो इफ आई सिंपली राइट डिफॉल्ट अगेन हियर, so your app will again start running। okay, so I hope यहाँ तक तुम्हें functional components में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। now for next video we will talk about props and how you can destructure some props and use different properties which you have passed
फ्रॉम फ्रंट एंड टू योर कंपोनेंट, ओके, और तुम कैसे उन प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हो. So this is it for this video. If you have any doubt, you can ask me in comment section. And again, if you haven't checked Newton School different programs yet, just go and check their pay after placement program and launchpad initiative and grand coding contest. And if you haven't subscribed Coding Talkies yet, just go and subscribe this YouTube channel so that you can get regular updates of all the playlists and videos which are going to get uploaded for you only and absolutely for free. Thank you guys for watching this video. Keep subscribing and like this video also. Thank you guys for watching.